اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مقام اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا وصل اعظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی ہر ماہ مرکزی بزم شاہ افضل بیابانی خاضی پور شریف کے زیر اہتمام مجلس غوثیہ یعنی واعظ و نصیحت منعقد کی جاتی ہے. اور سیدی بذات خود اس مجلس واعظ و نصیحت سے خطاب فرماتے ہیں. دیگر واعظین مقررین بھی در حقیقت ان مجالس کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک بوسادت محبوب سبحانی حضرت سے شاہ افضل بیابانی علیہ رحمت و رضوان پہنچنا ہے. پکڑ لو پیر کا دامن چلے رستے محمد کے. اور آج سیدی مرشدی نے محفل کو کچھ اس طرح رنگ دیا ہے تو ضرور ہر محفل سے ہم یہاں سے خوشیاں اور مسرتیں فتح و کامرانی کامیابی لے جاتے ہیں. اور اس وقت کچھ اور ہی منظر سما خانہ کا پیش ہو رہا ہے کہ سیدی مرشدی نے آج اس مبارک محفل میں قصیدہ برد شریف اور بزرگان دین کی شان میں کلام سنوانے کا اہتمام فرمایا ہے. اور جماعت اشرف بیابانی آپ کو کلام سنائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور ان کی توقیر کرو اور تعظیم کرو اور صبح اور شام ان کی پاکی بیان کرو. اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے. کون؟ قرن اول کے مسلمان صحابہ اکرام جیسے ایمان لائے. مسلمانوں سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے فرما رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے. صحابہ اکرام کیسے ایمان لائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک ترشواتے ہیں تو ایک بال شریف بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. وضو فرماتے تو جھپٹ پڑتے صحابہ اکرام، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے. حضور لعاب دہن تھوکنا چاہتے تو وہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. پانی کے قطرے بال شریف اور لعاب دہن لے لیتے، پی لیتے، اپنے چہروں پر مل لیتے. آمنو کما آمن الناس، کیوں فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جیسے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ جیسا ادب کیے ہیں قیامت تک کے پیدا ہونے والے ایمان والوں، تم بھی آمنو کما آمن الناس، جیسے وہ ادب کیے ہیں تم بھی ادب کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والا تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو عام انداز سے چلا کر پکار لیتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہ پکارو. اگر تم ایسا پکاریں گے، بے ادبی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے.
हफ्त के माने ज़ब्ती के बानी जाम निज़ामी अलैहिर्रहमान ने लिखा बर्बादी अमाल ज़ब्ती अमाल कुफ्र की वजह से है। और वो कौन सा कुफ्र है? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी वाला कुफ्र, जिससे सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं, हफ्त यानी ज़ब्त कर लिए जाते हैं। आदमी यही समझते रहता है कि मैंने बहुत बड़ी इबादतें की है, नमाज़ें पढ़ी है, तिलावत की है, तहज्जुद गुजारी की है, सदका खैरात किया है, नेकियां की हैं, सहर इफ्तार करवाया है, रोज़े रखा है, लेकिन सारी इबादतें एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा सी बेअदबी पर बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान में ऐलान फरमाते हैं, इन महाफिल इन मजालिस का मकसद महबूबान खुदा का अदब और उनकी निस्बत को इख्तियार करना और उनके दर से जुड़े रहना और आते जाते रहना। सहाबा कराम काम काज छोड़ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, काम काज छोड़ते आपकी बारगाह में आते, थोड़ा सा काम करते फिर आते, आपके चेहरे को तकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोग अपना काम काज छोड़े बार बार क्यों मेरे पास आते हो? तो अर्ज़ करने लगे सहाबा कराम, या रसूलल्लाह, जन्नत में न जाने किस आला मर्तबे और मुकाम पर आप रहेंगे और न जाने किस मुकाम पर हम रहेंगे, रोज़ाना जन्नत में आपका दीदार होता या नहीं होता या रसूलल्लाह, इसलिए हम बार बार अपना काम काज छोड़े दौड़े दौड़े आपकी बारगाह में आकर आपके चेहरे अक़दस को तकते रहते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमानियत दी, तसल्ली दी और फरमाया, अलमरउ मा मन अहब्बा, आज तुम जिससे मोहब्बत रखते हो कल उसी के साथ उठोगे, उसी के साथ रहोगे। मतलब हुज़ूर पाक ने बता दिया, तुम जिससे मोहब्बत रखते हो हशर भी उन्हीं के साथ होगा और जन्नत में भी उन्हीं के साथ दाखिला होगा। कि दादा हुजूर महबूब सुबहानी हज़रत से शाह अफ़ज़ल बियाबानी अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं कि मेरा यह जिस्म, ये तवाज़ुन फरमाया आपने, ये जिस्म जन्नत में जाने के लायक तो नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ताला इजाज़त देगा तो पहले अपने मुरीदैन को दाखिल करूँगा। अलक़िस्सा मुख्तसर ये बात मैं अर्ज़ करूँ कि दादा हुजूर के दो ख़ास मुरीदैन, बड़ी मोहब्बत थी उनमें और उनकी दोनों बीवियों में झगड़ा था। दोस्त मोहब्बत वाले थे, दोनों की बीवियाँ एक दूसरे से मिलते नहीं थे, झगड़ा पड़ गया था। तो दोनों दोस्त ने एक मरतबा अर्ज़ किया, दादा हुजूर अपने पीर मुर्शिद से कि हुजूर हम दोनों मिल के रहते हैं मोहब्बत से, हमारी बीवियों में झगड़ा रहता है। रात हुई, इन्होंने मारूज़ा किया और वो सो गए। ख्वाब में देख रहे हैं एक रेशम के तागों का गुच्छा है, उस गुच्छे की गिट्टियों को दादा हुजूर खोल रहे हैं। और जब सुबह हुई तो उसके बाद उन दोनों बीवियों में बातचीत हुई और मोहब्बत पैदा हो गई। ये रेशम के तागों के गिच्चियों की जो गिट्टियाँ खोल रहे थे, वो उन दोनों में जो बुराई पैदा हो गई थी, जो उनमें अदावत पैदा हो गई थी, उस अदावत को आपने खोल दिया और उन औरतों में, उनकी बीवियों में मोहब्बत पैदा हो गई। तो हम इस सिलसिले से वाबस्ता हैं जहाँ तागे की गिच्चियों को यानी गिट्टियों को, अदावतों को, कदूरतों को खोलते हैं दादा पीर, उसके बावजूद भी अगर हम अपने किसी पीर भाई से कद या अदावत या बुग़्ज़ दिल में रखते हैं तो बोलो दादा हुजूर को कितनी तकलीफ़ होगी। बुज़ुर्गान दीन तो गिट्टियाँ खोलते हैं और हम गिट्टियाँ डालने की कोशिश। अल्लाह हमको इस हरकत से बाज रखे, हमको वो सुन्नत पर चला, वो तरीक़े पर चला जो तेरे महबूब की सुन्नत और उनका तरीक़ा है। और हुज़ूर पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शायर रसूल कहलाते हैं, हुजूर के ख़ास शायर थे, उनको मिंबर पर बिठाते, सहाबा के मजमे में नीचे तशरीफ़ फरमा होकर उनसे कहते, हसन कहो। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु फरमाते, वाकमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ वअजमलु मिन कलम तरक़त तैनी खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप ऐसे कामिल व अकमल पैदा हुए, किसी माँ ने आज तक ऐसा कोई बच्चा पैदा किया ही नहीं जैसा आपकी माँ ने आपको पैदा किया। वह अजमलु मिन कलम तरक़त तैनी, या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीन व जमील कभी मेरी आँखों ने कहीं देखा ही नहीं। और फिर खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, कोई नक्स कोई ऐब आप में रखा ही नहीं, कोई ऐब ही नहीं, पाक पैदा किया। और ऐसे पैदा किया
कअन्नका क़द ख़ुलिक़्ता कमा तशा, जैसे या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको आपकी मर्ज़ी से पैदा किया। तो आप ये कलाम सुनेंगे क़सीदा बुर्दा में। इमाम बोसीरी अलैहि रहमत व रिज़वान जब क़सीदा बुर्दा लिखे, फालिज हो गया था, आपको आज़ू आपके बेकार हो गए थे, तो आपने हुज़ूर की शान में क़सीदा लिखा। हुज़ूर पाक खुश हुए और ख़्वाब में आकर कहने लगे इमाम बोसीरी से क़सीदा सुनाओ। उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर मैंने कई क़सीदे लिखे, कौन सा क़सीदा सुनाऊँ? तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमन जरामी मुखलतिम बिदमी, ये क़सीदा सुनाओ। उन्होंने सुनाया। हुज़ूर खुश होकर अपने कंधे पर से रिदा यानी चादर आपको उड़ा दी। जब आपकी आँख खुली, हुज़ूर की उड़ाई हुई चादर आपके जिस्म पर मौजूद थी। फालिज का कोई असर नहीं था। बुर्दे शरीफ कलाम सरकार की शान में जब हम सुनते हैं तो अपनी बीमारियों में हम अपने घरों में एहतमाम करें कि हुज़ूर का ये कलाम जिसको सुनने के बाद उनका फालिज ख़त्म हो गया, मुकम्मल शिफा हो गई। शिफा की नीयत से, खैर की नीयत से, बरकत की नीयत से, औलाद की बेहतरी की नीयत से, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की नीयत से हम बुर्दे शरीफ और अशार हुज़ूर की शान में सुनते हैं तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों के मुताबिक हमें सरफराज फरमाता अता फरमाता। अल्लाह ताला से दुआ है हज़रत सज्जाद नशीन साहब क़िबला की उम्र दराज फरमाएँ। उनकी सरपरस्ती में न सिर्फ मरकज़ी बज़्म चलती रहे बल्कि हैदराबाद की बज़्म शाह अफ़ज़ल बियाबानी, पूना बज़्म शाह अफ़ज़ल बियाबानी, रामागुंडम बज़्म शाह अफ़ज़ल बियाबानी और बम्बई बज़्म शाह अफ़ज़ल बियाबानी, दुबई बज़्म शाह अफ़ज़ल बियाबानी, जहाँ जहाँ ये बज़्म चल रही है, काम कर रही है, अल्लाह इन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।